Hello and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन। शुरू करते हैं पहले हेडलाइंस से। Thank you, Prachi. Benchmark domestic indices end with modest losses. Sensex slips 174 points. Nifty settles below 25,250. Major Asian stock markets end in negative territory. And India's retail inflation eases to 8-year low at 1.54% in September this year. प्रमुख घरेलू सूचकांक मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 174 अंक गिरा, निफ्टी 25,250 के नीचे बंद हुआ। प्रमुख एशियाई शेयर बाजार घाटे के साथ बंद हुए और भारत की खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में घटकर 8 वर्ष के अपने सबसे कम स्तर 1.54% पर आ गई। And before we start the program, an important information for our listeners. The views and opinions expressed by the experts on this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. And Prachi, the first news. जी, देश के प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ खुले और नुकसान में ही बंद हुए। सेंसेक्स 174 अंक घटकर 82,327 पर 327 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 58 अंक गिरकर 25,227 पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार सूचकांक नुकसान के साथ बंद हुए। मिड कैप सूचकांक में लगभग 0.2% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.4% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। Benchmark domestic equity indices, Sensex and Nifty opened in the red on the first trading session of the week. The indices traded lower throughout the day but recovered some losses in the last hour, closing down by 0.2%. The Sensex lost 174 points to settle at 82,327, while the Nifty dipped 58 points to close at 25,227. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange closed in negative territory. The mid-cap index declined around 0.2% and the small cap index slipped over 0.4%. सेंसेक्स में शामिल 30 में से 18 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। नुकसान में रहने वाले शेयरों में सर्वप्रथम टाटा मोटर्स लगभग 2.7%, हिंदुस्तान यूनिलीवर 1.4% से अधिक और इन्फोसिस 1.4% लुढ़क गया। मुनाफे में शुमार सर्वप्रथम अडानी पोर्ट्स 2%, बजाज फाइनेंस 1.3% से अधिक और बजाज फिनसर्व के शेयरों में 0.9% की बढ़त देखी गई। Among the sectoral indices at the BSE, 15 out of 21 sectors ended in negative zone. Among the top laggards, IT lost 0.9%, capital goods as well as FMCG both dropped 0.8% and focused IT slipped 0.8%. Among the top gainers, services advanced more than 0.5%, financial services rose 0.2% and BankX added 0.1%. And Prachi, let's hear how the rupee behaved today. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले आज रुपया 2 पैसे बढ़कर 88 रुपए 67 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। दुनिया की अन्य 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 99.07 पर चल रहा था। And listeners, as you well know that today is Monday, so we will be taking queries from you that on any issue of your interest on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can call us with your queries on these numbers: 2331 4444,
23421050 and 23310464. These are Delhi numbers, so do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. बिल्कुल श्रोताओं, आज कारोबारी खबरों के साथ साथ आपके प्रश्नों को भी हम शामिल करेंगे। फिर अर्थव्यवस्था हो या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल, आप सीधा हमें फोन कर सकते हैं इन नंबरों पर। ये नंबर्स हैं 23314444, 23421050 और 23310464। दिल्ली से बाहर के जो श्रोता हैं वो दूरभाष अंकों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 डायल करना न भूलें। लेकिन याद रखें कि हम किसी भी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब आपको इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। प्रश्नों के उत्तर और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक अमन अग्रवाल। नमस्कार अमन, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। And let's take the first call, which is coming in from Delhi. Our listener Nitin has called us from there. Nitin, welcome to Market Mantra. Please ask a question. हेलो, नमस्कार जी नमस्कार, अपना सवाल पूछें। अमन जी, मैं ये पूछना चाहूंगा सर, नमस्कार, कि मार्केट में ये सिल्वर जो है 2 लाख रुपए किलो के बेचने की उम्मीद हम कर सकते हैं, और गोल्ड भी लगभग 130 के आसपास ही घूम रहा है, और ये और बढ़ेगा कि इसके घटने के कुछ चांसेस है? और दूसरा एक सवाल मेरा और भी है जीएसटी के लिए, जैसे कि घोषणा तो हो गई है जीएसटी के लिए, पर ग्राहक ही अभी नुकसान में ही है। आज हमने बिल्डिंग मटेरियल के बारे में पूछा, सीमेंट के रेट वो पुराने ही रेट हमें बताते हैं, पर वो रसीद हमें नहीं देते। ऐसे लोगों की क्या कोई दूसरा रास्ता भी है? अगर रसीद नहीं देते, बिल्डिंग मटेरियल के रेट घटे हैं, तो इसके लिए आप कुछ उपाय बताएंगे? धन्यवाद। देखिए जी, जहाँ तक पहली बात जो गोल्ड और सिल्वर की आपने बात करी, बिल्कुल वो ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और अभी कुछ आगे समय तक 1-1.5-2 महीना और ऊपर चढ़ने की उम्मीद है इसके, क्योंकि इस समय त्योहारों का और शादियों का मौसम है। चाहे किसी भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, सभी के इस समय त्योहार और शादियां होती हैं अगले 3-4 महीनों में। दिसंबर के महीने में जरूर इसमें कुछ गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि यूरोप में और अमेरिका के अंदर दिसंबर में क्लोजिंग होती है। जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च होता है, तो उनका जो होता है वो जनवरी से दिसंबर होता है। तो वहाँ क्योंकि क्लोजिंग करनी होती है, तो काफ़ी सारी जो कंपनीज इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स होती हैं इन पदार्थों की, वो लोग उसको क्लोज करते हैं। इवन जो गोल्ड डीलर्स हैं या सिल्वर डीलर्स हैं, वो भी अपनी सिचुएशंस को क्लोज करते हैं। तो उस समय जो है हमें देखने को जरूर मिलेगी कुछ गिरावट, पर अभी जो है गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा जो रुपया है वो काफ़ी हद तक गिरता जा रहा था पिछले 8-9 महीने में, और इस वजह से भी क्योंकि जो इनके दाम है गोल्ड का और सिल्वर का, ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे किया जाता है। पर पिछले 1-1.5-15 दिन के अंदर लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी उछाल देखने को मिला है, क्योंकि जो अमेरिका में अनसर्टेनिटी बनी हुई है शटडाउन की वजह से, वहाँ के उनके पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया है बजट उनका, उस वजह से भी थोड़ी अनसर्टेनिटी बढ़ी है। दूसरी बात आपने जीएसटी की, जो जीएसटी की आपने बात पूछी है, उसमें देखिए पहली बात तो जो आपको सीमेंट के दाम नॉर्मली मिलते हैं वो नॉन जीएसटी वाले लोग देते हैं, जो सीमेंट ट्रेडर होते हैं, इसीलिए वो बिल नहीं देते हैं, कैश पेमेंट के अगेंस्ट देते हैं वो सीमेंट। अगर वो आप जीएसटी के दाम लेंगे तो उसमें आपको गिरावट जरूर मिलेगी। तो और बिल के ऊपर लेना आपका राइट है। अगर कोई दुकानदार मना कर रहा है तो आप दूसरे दुकानदार के पास जाइए, वहाँ पे नेगोशिएट करिए, क्योंकि आप बिल्डर हैं या आप कंस्ट्रक्शन में हैं तो आपको ज़्यादा सामान खरीदना है, तो कोई भी आपको व्यापारी देने में तैयार होगा। कोई स्टॉक इस समय होल्ड करना नहीं चाहेगा सीमेंट का, मौसम का जो तकाजा है वो उसको अलाउ नहीं करता है। तो इसलिए, और तीसरा, अगर फिर भी कोई करता है, कंप्लेन करके बात नहीं बनती, बट कंप्लेन करना चाहे तो जीएसटी के ऑफिसेज हैं, वहाँ पे आप लिखित में भी कंप्लेन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं, और उसके द्वारा आप सरकार को बता सकते हैं कि इस तरीके की चीज हो रही है। जी अमन, अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। उसके बाद हमारे जितने भी कॉलर लाइन पे जुड़े हुए हैं थोड़ा सा और पेशेंस रखें, हम आपको अभी कार्यक्रम में लेंगे आपके सवालों को। नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। दिल्ली से जुड़ रहे हैं नागेश। नागेश, आप अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग। मेरा सवाल एक्चुअली फॉरेक्स डॉलर रेट को लेके है। मैं 6 महीने से इस कार्यक्रम को फॉलो कर रहा हूँ। पहले ये कहा जाता था कि हमारा जो है सो डॉलर रेट इसलिए बढ़ रहा है कि डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है, और जब डॉलर का जो 6 करेंसी में मापने वाला इंडेक्स है वो 106-105 के ऊपर चला करता था।
अभी वो रेट जो है सो घट के बिलो 100 आ गया है, लेकिन फिर भी डॉलर बढ़ ही रहा है, ऐसा क्यों? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, यू हैव आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। पहली बात तो डॉलर कभी भी हमें पिछले 8-9 महीने में ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र नहीं आया है, क्योंकि वहाँ की जो इकोनॉमी है बड़ी डोलडम्स में है, प्रॉब्लम में है, और उनका इन्फ्लेशन की वजह से बहुत बुराई त्राही हुई है, तो वहाँ पे कहीं भी पर पिछले कुछ दिनों में और स्पेशली एक महीने के अंदर डॉलर में गिरावट काफ़ी हद तक देखने को मिली है, जिसका सीधा आंकड़न होना चाहिए कि रुपए के अंदर उछाल देखने को मिलेगा, बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पहली चीज़ तो समझनी जरूरी है कि हमारे कुछ इम्पोर्ट हैं काफ़ी हद तक, चाहे वो तेल के इंपोर्ट हों, चाहे वो दवाइयों के इंपोर्ट हों, कुछ खान पदार्थ के भी इंपोर्ट होते हैं। वो जो इंपोर्ट्स होते हैं उसकी वजह से हमें डॉलर में या किसी और करेंसी में पेमेंट करनी पड़ती है, इस वजह से भी हमारा रुपया जो है कभी कभी वीक दिखाई देता है। दूसरा, शुरू से ही काफ़ी समय से, अभी नहीं कहूँगा पिछले 30-40 सालों से आरबीआई की पॉलिसी फ्रेमवर्क में ये रहा है कि जब भी रुपया बढ़ता है तब आरबीआई इंटरवीन जरूर करती है, पर जब घटता है, गिरता है, तब इंटरवेंशन नहीं करती है, मार्केट मैकेनिज्म पे छोड़ देती है। ये आज की पॉलिसी नहीं है, जैसे मैंने कहा बहुत पुरानी पॉलिसी है। बीच में कुछ आरबीआई गवर्नर्स आए थे जो उन्होंने उनको अलग स्टैंड से लिया, बट अभी भी वही स्ट्रक्चर रह रहा है। तो अगर वो आरबीआई पॉलिसी चेंज करेगी तो हमें रुपया बढ़ता नजर आएगा, जो सब होना भी चाहिए, और उससे भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर भी फर्क पड़ेगा। और अगले कॉलर हैं भोपाल से शंकर, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, प्लीज अपना सवाल पूछें। नमस्ते सर, ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बंद हो गए हैं। गोल्ड असेट तो वैसे भी काफी डेड असेट होती है, तो व्हाई शुड इट बी डिस्करेज्ड बाय वे ऑफ हायर कैपिटल गेन टैक्स in comparison to property or housing or equity, because housing and equity, these are actually best contributor to the nation. देखिए जी, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि हिंदुस्तान लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का विश्व के अंदर। बाद में अब चाइना भी आ गया है, चाइना के साथ साथ चल रहा है। प्रोडक्शन में चाइना सबसे आगे है, कंजम्पशन में हिंदुस्तान है। ऑफिशियली हम करीबन 850, करीबन 900 टन के करीब कंज्यूम करते हैं प्रति साल, और उसके अलावा भी करीबन इसका आधा जो है स्मगल होकर हिंदुस्तान में आता है अलग अलग तरीकों से। तो आप समझ सकते हैं कितना गोल्ड का कंजम्पशन है। नॉर्मली जो ज़्यादातर देश होते हैं उनका गोल्ड का कंजम्पशन होता है इन्वेस्टमेंट या सेंट्रल बैंक करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो नॉर्मल कंजम्पशन है वो एक आम आदमी करता है, ज्वेलरी की फॉर्म में, गोल्ड कॉइन्स इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में। अगर पूरे विश्व में देखा जाए करीबन 46% के करीब जो है इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी की फॉर्म में होती है। सिर्फ 25-26% सेंट्रल बैंक लेते हैं और करीबन 23-24% इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में होती है। क्योंकि ये एक आम आदमी से जुड़ता हुआ चीज है, एक आम आदमी, गरीब आदमी, लोअर तबके का भी होता है, बड़ा भी होता है, जो शादी करे, घर में रहे, इसको मानता है। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ फेस्टिवल्स हैं जहाँ पे पूजा जाता है लक्ष्मी को, पैसे को, गोल्ड को, सिल्वर को और चीज़ों को, इवन बर्तनों को किया जाता है। तो इसलिए ये चीज़ों को जो है इसको सरकार ने ज़्यादा टैक्स रेट पे नहीं रखा है ताकि एक आम आदमी इस चीज़ों को खरीद सके। हम पहले भी सोने की चिड़िया हैं, आज भी देखें तो हम काफ़ी हद तक सोने के मामले में सोने की चिड़िया जैसे ही हैं। जी रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एशिया के प्रमुख बाजार आज घाटे के साथ बंद हुए। हांगकांग का हैंगसेक सूचकांक 1.5%, सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स 0.8% से अधिक, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी सूचकांक 0.7% और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 0.2% लुढ़क गया। जापान में आज छुट्टी के कारण शेयर बाजार बंद रहे। प्रमुख यूरोपीय सूचकांकों में आज मिला जुला रुख रहा। आखिरी रिपोर्ट आने तक जर्मनी का डैक्स 0.3% और फ्रांस का कैक 40 0.1% से अधिक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। वहीं लंदन का FTSE 100 0.1% की गिरावट के साथ कारोबार करता नजर आया। And Prachi, now it's time to go into another break. Welcome back to Market Mantra, where we are taking your calls on any matters related to economic, business and stock market. Today, listeners, you can call us with your queries on 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. Do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. And now let's move on to the next news. The country's retail inflation moderated to over 8-year low of 1.54% in September this year, down from 2.07% recorded in August 2025. According to data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, it is the lowest year-on-year inflation rate
after June 2017. Meanwhile, inflation in rural areas softened to 1.07% and 2.0% in urban areas. The food inflation rate based on the All India Consumer Food Price Index remained negative for the fourth consecutive month, slipping further into deflation at 2.28% in September, the lowest since December 2018. Corresponding food inflation rate for rural areas also decelerated to 2.17%, while urban areas also witnessed deflation standing at 2.47% during last month. According to the ministry, the decline in headline inflation and food inflation during the month of September is mainly attributed to favorable base effect and to decline in the prices of vegetables, oils, fruits, pulses and cereal. Aman, now we see that the inflation, CPI inflation for the month of September is on a 8-year low, 1.54%. A lot of economists, most of the people, take it as a very positive news, but I know you have a slightly different opinion when it comes to CPI inflation and the way it goes down. True, I agree. The thing is that inflation is something like a blood pressure in a human body. Right. And you have to have a certain level. And for a developing economy or an emerging economy like India, it is well tested that an inflation rate of anywhere around 4 to about 5.5% is considered to be good, because an industrialist needs a motivation. Right. That means if someone is producing a good for 100 rupees, he wants to sell it for 105 rupees. That's where he sees his profit. If it doesn't build up, then if he sells the same product for 100 rupees, next year also he sells it for 100 rupees, what is his motivation to go forward? Right. And that's why inflation is a very critical component. In fact, RBI must now look at this framework and see that they should bring in policies which do not reduce this inflation further. Actually, what has happened is they reduced by almost 100 basis points in a very sharp manner in the last not in the last one, but the previous to that monetary policies, which was not observed in the Indian economy for almost 2 years or so. So this is something which has led to a major fall in the inflation factor also. And if RBI considers, this can be controlled by raising it slightly if they try to do it in the next monetary policy. And the next call is coming in from Delhi. Mr. MP Singh is calling us from there. But before we take his call, let's go into another break. इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। अरे नो टेंशन, करनी है तैयारी, एनपीएस जरूरी है। आज ही अपना एनपीएस अकाउंट खुलवाने के लिए नजदीकी बैंक शाखा या सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें या ईएनपीएस पोर्टल पर जाने के लिए ऑनलाइन www.npstrust.org.in पर लॉगिन करें। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। अरे नो टेंशन, करनी है तैयारी, एनपीएस जरूरी है। आज ही अपना एनपीएस अकाउंट खुलवाने के लिए नजदीकी बैंक शाखा या सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें या ईएनपीएस पोर्टल पर जाने के लिए ऑनलाइन www.npstrust.org.in पर लॉगिन करें। मार्केट मंत्र में आपका पुनः अभिनंदन। एनपी सिंह जुड़ रहे हैं दिल्ली से। कृपया अपना सवाल पूछिए एनपी सिंह जी। गुड इवनिंग पैनलिस्ट। Good evening. I have a very simple question that in scenario of American tariff, I want to know in what products we should invest and what we should not, and what is the position of the property, say around the NCR or specifically Noida. Is it fair to invest right now in there, because there are many export units? They are specifically catering to apparel industry is getting to America. So, first of all, the Trump tariff framework has no direct impact on the Indian economy per se, but it does have impact on the exporters and communities which are exporting. Now, when you talk of real estate is something which you're going to be buying, and not only unless you're buying a predetermined business house which has taken something on rent from real estate, and that's what you're buying, then there could be difficulties. But otherwise,
a city like Delhi or Noida does not only have real estate booming because of textile apparels and business houses which are exporting to the US in particular. So that is something we should be taken out. In real estate or any other product you want to invest in, you can invest. Pharmaceutical industry, defense industry, the high tech in terms of solar or chips are some things which are certainly going up. Gold has been a little volatile lately. For short term, you can certainly look at it, but for long term, it may not something yield you returns. But in the short term, it may. You can always buy gold bonds also from the secondary market. Primary market, they're not available. So these are areas which you could think of investing. And please take this mind off from the US tariff framework. In fact, even in the Supreme Court in the United States, it has been disapproved by the court there that Trump as a president does not have power to actually impose all these tariffs which he has done as a presidential order. So there are still debates within the Congress, and that's why they are on a shutdown lately because of the kind of situations which have been happening there. अनुभा, मुंबई से हमारे साथ मुर्तजा जुड़ रहे हैं. मुर्तजा, अपना सवाल पूछिए. मैडम नमस्ते, मेरा नाम मुर्तजा है. जी, अपना सवाल पूछिए. मेरा सवाल है कि मैंने गोल्ड बिस्किट 70,000 में लिया था. जी, आगे पूछिए. मैंने गोल्ड बॉन्ड लिया था 70,000 में. अच्छा जी, तो हेलो. जी हाँ, आप सवाल पूछें, हमें आपकी आवाज आ रही है. 70,000 में गोल्ड बॉन्ड लिया था. हाँ. मैंने गोल्ड बॉन्ड लिया था 70,000 में, तो इसको मैं बेच सकता हूँ क्या अभी? हाँ, आप सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हैं. अभी कुछ और उछाल आने की उम्मीद है अगले 1.5 महीने में, बिकॉज त्योहारों का समय है. आप वेट करना चाहें वेट करें. अगर आपको पैसे की जरूरत है जरूर आप गोल्ड बॉन्ड को सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हैं. And the next caller is also from Mumbai. Ratnakar is calling us from there. Ratnakar, welcome to Market Mantra. Please ask your question. हेलो, गुड इवनिंग मैडम. जी, गुड मेरा इवनिंग. सवाल है कि अभी जो मार्केट की हाइट पर जो है, तो यही स्टेज पर कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ये एक सवाल है. और मार्केट का ये जो हमने म्यूचुअल फंड में कुछ इन्वेस्टमेंट किया था 2018 में, और उसका रिडम्पशन 2024 में किया, तो ये जो कोई कैपिटल गेन है तो उसके ऊपर जो एग्जम्पशन है वो हर साल का एग्जम्पशन मिलेगा कि जब ये रिडम्पशन करते हैं तभी एग्जम्पशन मिलेगा? थैंक यू. देखिए, जहां तक कैपिटल गेन्स का है, जिस साल आप रिडीम करते हैं उस साल में आपको फिर रिडेम्पशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है. हर साल का हिसाब नहीं होता है इसमें, जब भी आपने उसको रिडीम किया है. दूसरी चीज जो आप मार्केट्स की बात कर रहे थे, अलग अलग मार्केट्स अलग अलग इस समय भाव दे रही हैं. जहां तक स्टॉक मार्केट्स की बात है उसमें उछाल है, उसमें करेक्शंस भी आ रही हैं और ठीक चलेगा. जहां तक गोल्ड मार्केट, बुलियन मार्केट जो हिंदुस्तान में काफी तीव्रता पे है, उसमें भी अगले 1.5 महीने में तब चलेगा. मार्केट स्ट्रांग है, भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग है, इसलिए डरने की बात नहीं है. उत्सव का ये सीजन चल रहा है अनुभा, तो बात करते हैं एक और सबसे खूबसूरत उत्सव की जो अभी देश में मनाया जा रहा है. ये है बचत उत्सव. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की 22 तारीख से शुरू हुआ जीएसटी बचत उत्सव पूरे देश को लाभान्वित कर रहा है. आइए सुने पंजाब के विभिन्न उद्योगों को कैसे जीएसटी सुधारों ने सशक्त बनाया. नए जीएसटी सुधार पंजाब के कारीगरों, किसानों और छोटे व्यवसायों के लिए एक बड़ी राहत है. इन सुधारों के तहत राज्य में कई वस्तुओं पर अब न्यूनतम कर लग रहा है, जिससे पारंपरिक और क्षेत्रीय उत्पादन अधिक किफायती हो गए हैं और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है. यह सुधार पंजाब के कपड़ा और शिल्प क्षेत्रों के लिए विशेष महत्व रखता है. फुलकारी कढ़ाई जो लगभग 20,000 कारीगरों का आधार है, उस पर अब 12% के बजाय 5% कर लगाया गया है, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बिक्री को बढ़ावा मिल रहा है. लुधियाना और अमृतसर में बने ऊनी शॉल और दुपट्टा पर कर को 5% कर दिया गया है, जिससे बुनकरों और छोटी इकाइयों को अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी. नए जीएसटी सुधार बिक्री बढ़ाने, आजीविका को बनाए रखने और त्योहारों के मौसम के दौरान पंजाब के विनिर्माण क्षेत्रों को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं. रोहन के साथ दृष्टि पुनियानी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली. And now let's move on to commodities. Global crude oil prices rose today. Brent crude was trading over 0.7% up at $63.18 per barrel. And WTI crude was trading almost 0.8% up at $59.36 per barrel when reports last came in. Meanwhile, the OPEC has made no changes to its relatively high global demand growth forecast for this year and the next in its latest monthly oil market report. It added that
OPEC Plus is adding more crude to the market after the Organization of the Petroleum Exporting Countries, Russia and other allies decided to unwind some output cuts more rapidly than earlier scheduled. The extra supply has raised concern over surplus and weighed on oil prices this year. Let's move on to gold and silver prices. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading almost 2% up at 1,24,040 rupees per 10 grams, while silver was trading over 3.9% up at 1,52,720 rupees per kilogram a short while ago. This surge was attributed to renewed trade tensions between the US and China, an extended US government shutdown, and increasing global economic uncertainties, which have enhanced the appeal of safe haven assets. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध वाला सोना 2% से अधिक बढ़कर 1,23,844 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था और दिसंबर अनुबंध वाली चांदी अंतिम रिपोर्ट आने तक लगभग 4.2% बढ़कर 1,52,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। अमन, बहुत संक्षिप्त में एक लाइन में कहा जा रहे हैं ये प्राइसेस? देखिए जी, जैसे मैंने कहा पहले भी कि ये बढ़ेंगी अभी और हो सकता है 31 को भी क्रॉस कर लें और जो सोने का रेट है, पर दिसंबर में जाके करेक्शन आएगा और फिर दोबारा बढ़ने की तरफ जाएंगे। अमन, मार्केट में आपने हमारे कार्यक्रम में आकर के हमारे श्रोताओं को सारे जवाब दिए, बहुत अच्छे से जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices end with modest losses. Sensex slips 174 points. Nifty settles below 25,250. Major Asian stock markets end in negative territory, and India's retail inflation eases to 8-year low at 1.54% in September this year. And that's it in this